اسرائیل فلسطین جنگ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس میں امریکہ، جرمنی، پاکستان، مصر اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ، نمائندگان اور مبصرین شریک ہوئے۔ اجلاس میں امریکہ اور جرمنی کے وزرائے خارجہ کی اسرائیل کی حمایت کا اعلان، جبکہ پاکستان، سعودی عرب، مصر اور اردن کا فلسطین کے حق میں اہم بیان سامنے آیا ہے۔ اسرائیل فلسطین جنگ کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ اسرائیل فلسطین جنگ کا معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایک بار پھر سے اٹھایا گیا۔ اجلاس میں امریکہ، جرمنی، پاکستان، مصر اور سعودی عرب سمیت مختلف دیگر ممالک نے شرکت کی ہے اور ان کے وزرائے خارجہ، نمائندگان اور مبصرین شریک ہوئے۔ غور کیا گیا، اجلاس میں امریکہ اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان، سعودی عرب، مصر اور اردن کا فلسطین کے حق میں بیان سامنے آیا ہے۔ اسرائیل فلسطین جنگ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں امریکہ، جرمنی، پاکستان، مصر اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ، نمائندگان اور مبصرین اس اجلاس میں شریک ہیں۔ اجلاس میں امریکہ اور جرمنی کے وزرائے خارجہ کی اسرائیل کی حمایت کا اعلان سامنے آیا ہے اور پاکستان اور سعودی عرب، اس کے ساتھ ساتھ مصر اور اردن نے فلسطین کے حق میں بیان دیا ہے۔ اسرائیل فلسطین جنگ کا یہ معاملہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ابھی جاری ہے اور اس اجلاس میں امریکہ، جرمنی، پاکستان، مصر اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ، نمائندگان اور مبصرین بھی شریک ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی فلسطین کے سفیر احمد جواد سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے غزہ میں جاری جنگ میں فلسطینیوں کے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کو مظالم کی حوصلہ افزائی سے باز رکھنے کے لیے متحرک ہو۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی فلسطین کے سفیر احمد جواد سے ملاقات۔ آرمی چیف کا 1967 سے پہلے سے سرحدی بنیاد پر قائم فلسطینی ریاست کی حمایت کا اعادہ، اسرائیلی فوج کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر اظہار تشویش۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں فلسطین کے سفیر احمد جواد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں آرمی چیف نے اسرائیلی فوج کی جانب سے معصوم شہریوں کے بے دریغ قتل، سکولز، یونیورسٹیز، امدادی کارکنوں اور اسپتالوں پر حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ غزہ سے فلسطینیوں کا جبری انخلاء انسانیت کے خلاف جرائم کا عکاس ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی فوج کو جاری مظالم کی حوصلہ افزائی سے باز رکھنے کے لیے متحرک ہو۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ اسرائیل کی خود غرضی اور تنگ نظریے کے تحت جبر ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مظالم انسانیت اور شہری اقدار کی خلاف ورزی کے عکاس ہیں۔ غزہ لہو لہو، صہیونی فورسز کے وحشیانہ وار جاری۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 5791 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 700 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ بجلی، خوراک، پانی سمیت بنیادی اشیاء کی قلت ہے۔ غزہ میں قیامت خیز مناظر، تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ غزہ میں صورتحال دن بدن ابتر ہونے لگی۔ صہیونی فورسز غزہ کا نام و نشان مٹانے کے در پہ۔ غزہ میں ہونے والے مظالم بد نہ ہو سکے۔ اسرائیلی فوج نہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھانے میں مصروف۔ صہیونی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ اور گرد و نواح میں 324 حملوں میں 704 معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا، سینکڑوں افراد زخمی۔ صہیونی فورسز نے خان یونس میں فضائی حملے میں 3 خاندانوں کے 23 افراد شہید کر ڈالے۔ الفلوجہ میں بھی حملہ، 17 افراد شہید۔ گزشتہ رات تودیر البلاح میں ہونے والے حملے میں 10 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں نسل کشی جاری ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے غزہ کے الشاطی کیمپ پر رات گئے بمباری کی گئی، جس میں 182 بچوں اور درجنوں خواتین سمیت 436 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز کی کارروائیوں سے غزہ میں 160,000 سے زائد رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے 205 سکولز اور 29 ہسپتال بھی تباہ کیے۔ اب تک غزہ کا 42% سے زائد حصہ تباہ ہو گیا۔ 65% پرائمری ہیلتھ کیئر کلینکس کی بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ حماس اسرائیل تنازع حل کرنے کا مشن، عالمی رہنماؤں کے رابطے اور ملاقاتیں جاری ہیں۔ دوسری جانب حماس نے بھی 2 یرغمالی خواتین کو انسانی بنیادوں پر رہا کیا ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر ابو علیحان نے ایران میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر حماس کی سہولت کاری کے بارے میں لگائے گئے الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ فلسطینی عوام کو ان کا حق دینا چاہیے اور فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ دوسری جانب امیر قطر شیخ تمیم بن حمید کہتے ہیں کہ دنیا اسرائیل کو غزہ میں قتل عام کا مفت لائسنس نہ دے۔ غزہ میں پیش آنے والی صورتحال کی ذمہ دار عالمی برادری ہے۔ دوحہ میں شورا کے اجلاس کے خطاب کے دوران امیر قطر
शेख तमीम बिन हमीद ने कहा कि दुनिया को ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि फलस्तीनी बच्चों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। हम दोहरे मयार को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। फ्रेंच सदर मैक्रोन ने भी इसराइल का दौरा किया। फ्रांसीसी सदर भी गजा में होने वाले मजालिम पर खामोश। न्यूज कॉन्फ्रेंस में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम हमास का नामो निशान मिटने तक नहीं रुकेंगे। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि इसराइल के साथ खड़े हैं। हमास दहशतगर्द जमात है, इनके खात्मे तक जंग जारी रहनी चाहिए। हमास ने 2 ज़ईफ इसराइली यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया है। हमास के मुसल्लह विंग के तर्जमान ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि यरगमाली इसराइली खवातीन को इंसानी हमदर्दी और खराब सेहत की बुनियाद पर रिहा किया गया। इसराइल हमास कशीदगी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। अमरीका, रूस, इसराइल और फ़लस्तीन समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। तफसील के लिए रिपोर्ट। इसराइल हमास तनाज़े के हल के लिए बुलाए गए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास में अमरीका, रूस, इसराइल, फ़लस्तीन समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदगान ने शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अपने खिताब में कहा कि गजा में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ देखकर बहुत दुख होता है। जंग के कानून होते हैं, अस्पतालों, स्कूलों और शहरियों को कत्ल करना इंसानियत नहीं। दोनों फरीकों को मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने खिताब में कहा कि इस तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए पुरआज़्म है। हमास फ़लस्तीनी अवाम को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल के हाथों मारे जाने वाले तमाम अफराद आम शहरी हैं। गजा की तबाही का जिम्मेदार इसराइल है। फ़लस्तीन के लोगों का कत्लेआम करके इसराइल कभी ये जंग नहीं जीत सकता। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने अपने खिताब में कहा कि 7 अक्टूबर के दिन को सयाह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर शब खून मारा और हमास ने बर्बरियत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बरतानवी सिक्योरिटी मिनिस्टर ने अपने खिताब में कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, दोनों फरीकों को मिल बैठकर मसले का हल तलाश करना चाहिए। हम सबको मिलकर इस तनाज़े को जल्द अज जल्द हल करना होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान कहते हैं कि इसराइल हमास तनाज़े का फौरी हल चाहते हैं। हमारा मुतालबा दोनों फरीक़ैन से जंग बंदी का ही है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर हम इसमें नाकाम हुए तो ख़ित्ते का अमन मुतासर होगा। हमें दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम करना होगा और अरब ममालिक इस मसले के हल के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं अदालती उमूर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक की तौसीह कर दी। अदालत ने अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और रिलीफ। हिफाजती जमानत में 2 रोज के लिए तौसीह दे दी गई। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस का मुस्तकबिल क्या होगा, अदालत ने नैब से पोजीशन वाज़े करने का कह दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत के इस्तिफसार पर नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि इन्हें ना नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर कोई इतराज़ है और ना ही अपीलें बहाल करने पर। नैब को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपको किसी बात पर कोई इतराज नहीं तो फिर एक वाज़े पोजीशन ले ताकि हम साथ ही अपीलों पर भी फैसला कर दें। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नैब को मतलूब नहीं तो फिर रेफरेंस बरकरार रखने का क्या मतलब। प्रोसिक्यूशन टीम चेयरमैन नैब से वाज़े हिदायत लेकर अदालत को आगाह करे ताकि कौम का मजीद वक्त ज़ाया न किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर नैब समझता है कि ये केसेस बोगस थे तो फैसला करके वाज़े पोजीशन लेनी चाहिए। नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा, हमारी तो जो किरदार कशी होनी थी हो गई। एवनफील्ड केस एक पहाड़ था जिसमें से कुछ भी नहीं निकला। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस को जुमरात के लिए रख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इस दिन नैब क्या कहता है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तोशाखाना केस में खुद को एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। अदालत ने नवाज शरीफ की ज़मानत मंजूर करते हुए दायमी वारंट भी मुअत्तल कर दिए। नवाज शरीफ 4 साल बाद एहतसाब अदालत पहुंचे तो कारकुनान ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। साबिक़ वज़ीर आज़म की तोशाखाना केस में 4 साल बाद पेशी। नवाज शरीफ ने खुद को एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। 10 लाख के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर, दायमी वारंट भी मुअत्तल। नवाज शरीफ की जगह राना इरफान को प्लेडर मुकर्रर करने की दरखास्त भी मंजूर। एहतसाब अदालत ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नवाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत पहुंचे। नवाज शरीफ जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश हुए। रश और धक्कम पेल के बाइस जज ने हाजिरी लगवाने के
बाद नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया, इनके वारंट मुस्तरद कर दें। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर नकुल तकसीम की जाएंगी। अदालत ने जायदाद जब्तगी की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिए। जमानती मचल के साबिक वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की जानिब से जमा करवाए गए। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए नवाज शरीफ ने प्लेडर मुकर्रर करने की दरखास्त की। वकील सफाई के मुताबिक नवाज शरीफ बीमार हैं, हर समाअत पर अदालत पेश नहीं हो सकते। नवाज शरीफ की जानिब से राना मोहम्मद इरफान हर अदालती पेशी पर हाजिर हो सकते हैं। निगरान पंजाब हुकूमत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त की थी। निगरान पंजाब काबीना ने वीडियो लिंक के जरिए दरख्वास्त पर समाअत की। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में निगरान पंजाब काबीना ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी। निगरान पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर वीडियो लिंक के जरिए समाअत की। इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज ने दलाइल दिए। निगरान पंजाब काबीना और चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो लिंक पर मौक़िफ़ सुनने के बाद मुत्तफ़िका तौर पर दरख्वास्त मंजूर कर ली और नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब ज़राए निगरान पंजाब हुकूमत के मुताबिक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। नवाज शरीफ की साल 2019 लंदन रवानगी से पहले भी सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की गई थी। वाज़ेह रहे कि 24 दिसंबर 2018 को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 31 अक्टूबर 2019 को मेडिकल ग्राउंड पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई। 6 जुलाई 2018 एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 19 सितंबर 2018 को मेरिट पर सजाएं मुअत्तल करके तमाम को रिहा कर दिया गया था। इस्लामाबाद इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने थाना CTD में दर्ज मुकदमे में चौधरी परवेज़ इलाही पर फर्द जुर्मात करने के लिए 21 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए। कहते हैं सियासतदानों में निगरान होते हैं, वैसे ही जजेस में निगरान होते हैं। आज मैं भी निगरान जज ही हूँ। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। थाना CTD में दर्ज मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही डिप्टी जज की अदालत में पेश। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में तोसी फर्द जुर्म आयद करने के लिए 21 नवंबर की तारीख मुकर्रर। जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत होने के बायस चौधरी परवेज इलाही को डिप्टी जज के रूबरू पेश किया गया। जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि जैसे सियासतदानों में निगरान होते हैं, वैसे ही जजेस में भी निगरान होते हैं। आज मैं भी निगरान जज ही हूँ। अदालत ने वकला की इस्तदा मंजूर करते हुए कमरा अदालत में परवेज इलाही से बात करने की इजाजत दे दी। चौधरी परवेज इलाही ने साफियों से गुफ्तगू में कहा कि सब उम्मीदें अदलिया से हैं, इंतखाबात तो करवाने ही पड़ेंगे। मियां नवाज शरीफ 2 नंबर नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश में हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा। मियां साहब 2 नंबर का नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन PTA का साथ देने के सवाल पर परवेज इलाही का कहना था कि 5 माह हो गए हैं, आइंदा भी साथ निभाएंगे। जब इंतखाबात का ऐलान होगा तब इनको समझ आएगी कि इनके साथ क्या हुआ है।